Okay, I think the rest of them will be joining in between. So I think we should start. Yeah, scholars. Okay. Good morning. A very beautiful morning to everyone. I, Shweta Mishra, welcome you all for our Talk of Month session on emotional first aid by our esteemed guest, Dr. Prashant Karya. I feel overwhelmed to introduce Dr. Karya. Sir is a neonatologist and pediatrician by profession. He is MBBS, MD, and have also done postgraduate diploma in pediatric nutrition from University of Boston. He is attached to various esteemed organizations like Sir is president of Surat Pediatric Association, founder of Yuva Mitra Association, secretary of Adolescent Health Academy. They are just few to mention. Sir has also received many appreciation awards and is author to many books too. Sir is also director and CEO at Param NICU and Children Hospital and Param Baby Care Hospital, Yuva Mitra Clinic, all these situated in different locations of our city. Dr. Karya, on behalf of my entire CIS team, I wholeheartedly welcome you. Now I hand over the session to you, sir. Over to you. Thank you, teacher. I just like to ask, the session is for 30 minutes or 40 minutes? Sir, the session is of 1 hour till Okay, 10 will be going, but for 45 minutes, you can continue with talking. Rest, last 15 minutes we give for question here. fine. So, morning students, today I'm not going to present any PowerPoint presentations. It is just a discussion which we will be doing. बात जो करनी है हमें इमोशन के बारे में जब हम बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले आई जस्ट आस्क टू ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू फीलिंग? चैट बॉक्स में फटाफट लिखो आज क्या इमोशन है अभी के मॉर्निंग मॉर्निंग में. आर यू फीलिंग सैड? आर यू फीलिंग हैप्पी? आर यू फीलिंग एक्साइटेड? क्या फीलिंग्स हैं? कूल, वेरी गुड. नॉट प्राइवेटली, यू कैन राइट डाउन एवरीवन. ओके, फ्रेश, हैप्पी, हैप्पी एंड एनर्जेटिक, हैप्पी. ओके, फाइन. कूल, एक्साइटेड, हैप्पी, हैप्पी, फ्रेश. सो आई थिंक सब लोग ज्यादातर फ्रेश हैं, हैप्पी हैं, कूल हैं, एक्साइटेड हैं. कोई ऐसा है जो सैड है आज? क्या सुबह सुबह में ये लेक्चर के लिए आ जाना पड़ा? मुझे तो मस्त नींद आ रही थी और मुझे अभी ये लेक्चर अटेंड करना पड़ रहा है. कोई ऐसा है? नहीं. सो आई एम ग्लैड दैट सब फ्रेश और एनर्जेटिक हैं. तो ये सब जब हम साथ में हैं, तो इमोशनल फर्स्ट एड की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो उसमें इमोशंस, जो नेगेटिव इमोशंस हैं, उसमें हमें फर्स्ट एड चाहिए. सी, फर्स्ट एड हमें कब चाहिए? नॉर्मली हम डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब बीमार पड़ते हैं, राइट? फीवर आया, हेडेक हो गया, वॉमिटिंग हो गई, कहीं पे इंजरी हो गई, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं या फर्स्ट एड अप्लाई करते हैं. तो ये सब इंजरीज हैं. ऐसे जब हमारी बॉडी में कोई इंजरी होती है, फिजिकल इंजरी के लिए तो हम डॉक्टर के पास चले गए, बट जब मेंटल इंजरी होती है, मेंटल इंजरी मतलब थोड़ा सा लो फील करना, कभी कभी रोना आ जाना, कभी कभी फ्रस्ट्रेशन आ जाना, कभी कभी गुस्सा आ जाना. कितनों को गुस्सा आता है इसमें से? यस लिखो फटाफट चैट बॉक्स में. किस किस को गुस्सा आता है? सिर्फ यस लिखो. यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, सो आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीवन इज हैविंग द सेम थिंग. सो यहाँ पे मैं ये पूछना चाहूंगा जितनों ने भी लिखा है, आई अगेन रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स कि आप लोग प्राइवेटली जो भेज रहे हैं, आप रिप्लाई टू एवरीवन करके भेज सकते हैं, सो सब लोग देख सकते हैं. सो यहाँ पे जिसने लिखा है गुस्सा आता है, वहां उन सबसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा. डू यू फील एंगर इज अ बैड इमोशन? अगेन यू कैन राइट डाउन इन chat box yes or no. Yes, no, no, yes, no. Okay, fine. Sometimes, very good. I would like to ask Malhar Singh, who has written. Can you unmute and explain sometimes मतलब क्या? Yes, sir. I wrote sometimes because, sir, like many times, anger can also help us, and anger can also do bad for us. Fine. So give me an example in which anger will help us. Yes, sir. Like anger can, like if
sometimes there is a competition or anything and you lose once, so like you can get angry and you can work more on that, so that angers help you in Okay. coming over that. So is that a anger emotion or anything else? वहां पे anger emotion आता है या कुछ और आता है? ठीक है, It, यू आर पार्टली राइट दैट यस, जब हम हार जाते हैं कोई भी कंपटीशन में, फर्स्ट राउंड हार गए और सेकंड, उस टाइम पे एंगर आ जाता है हमें, तो उस टाइम पे शायद वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। हार्मफुल तो मेजोरिटी टाइम होता है, राइट? जब वो आतामाजी सटकली करके वो अजय देवगन आ जाता है तो सबको गुस्सा आ जाता है। सो आई थिंक यू आर राइट दैट एंगर इज समटाइम्स हार्मफुल एंड समटाइम्स यूजफुल, सो इट इज नॉट ऑलवेज अ बैड इमोशन। बट एंगर इमोशन बैड कब हो जाता है? जब आप उसको पकड़ के रखते हैं। सी, गेम में आपको गुस्सा आया, आपने ज्यादा एनर्जी इकट्ठी की और आप खेलने लगे एंड देन यू विन द गेम, तो क्या हो जाता है फिर वो वापस एंगर विद इन फ्यू मिनट्स दिमाग से चला जाता है, ठीक है? पर अगर उसको पकड़ के रखा, जैसे आज क्लास में कुछ हुआ और टीचर ने एकदम से सटकाया, हाँ, कि ये क्या सबके बीच में, सो यू फील के टीचर क्या सबके बीच में ऐसे कर रही है, या किसी ने कुछ भी किया, वो पूरे दिन अगर उसको दिमाग में रखा तो क्या हो जाएगा, वही के वही हमारा दिमाग में इमोशन रहेगा एंड प्रॉब्लम होगा। जब एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा, जैसे ये वाटर बॉटल है, मतलब ये ट्रांसपेरेंट तो नहीं है, बट अगर ये ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होती और इसको मैं शेक करता ऐसे जोर से, ठीक है, शेक करता तो क्या होता, पानी अंदर का एकदम शेक हो जाता, पानी ही है, एकदम क्लियर पानी है, पर वो शेक हुआ पानी, और उसमें से अगर मैं देखना चाहता तो मैं देख पाता नहीं, राइट? बट अगर मैं सिर्फ 2 मिनट वेट करता हूं, क्योंकि ये पानी था, इसको मैंने शेक करने के बाद 2 मिनट बाद वेट किया, और 2 मिनट वेट किया तो वो पानी एकदम नॉर्मल हो गया, और मैं फिर से वो ट्रांसपेरेंट पानी है, ट्रांसपेरेंट बॉटल है, तो उसके अंदर से देख पाऊंगा। सेम इज विद माइंड, कि अगर हम थोड़ा सा काम डाउन करते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, तो अच्छा हो सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे पानी की जगह पे सोडा होता तो क्या होता, इसको मैं शेक करता, मतलब दिमाग में जो गुस्सा आता है तब वही होता है ना कि हमारे सारे इमोशंस हिल जाते हैं, केमिकल्स हिल जाते हैं। अगर उसके अंदर सोडा है, कोई भी कोका कोला है, पेप्सी है, कुछ भी है, तो क्या होगा, वो फट से बाहर निकल जाएगा, ठीक है? अब वो फट से बाहर निकल जाएगा, पर अगर आपका ढक्कन बंद है, एक चीज समझो, आप जब किसी भी गैस वाली चीज को शेक करते हो और ये बटन बंद है, इसको शेक करोगे तो क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा, होता है कि नहीं होता? मतलब एकदम से फट से फूटेगा, कुछ भी फूटेगा, एंड हो सकता है उसका ढक्कन दूर तक जाए और किसी को लग जाए। सेम हैपेंस विद एंगर। सो एंगर इज इटसेल्फ नॉट अ बैड थिंग इफ यू कैन हैंडल इट प्रॉपरली। अगर राइट टाइम पे हमने एंगर एक्सप्रेस किया, राइट वे में एक्सप्रेस किया, राइट आदमी पे किया, क्या होता है, आज मुझे यहाँ पे लेक्चर लेने आना था तो जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना पड़ा, और मैं थोड़ा लेट हो रहा था, तो घर पे बच्चे के ऊपर एकदम एंगर एक्सप्रेस करके आता तो क्या होता, उसके ऊपर पापा क्या ये आपको काम है, आपको जल्दी जाना, और आप मेरे पे गुस्सा कर रहे हैं, होता है कि नहीं होता? सो कई बार आप किसी और चीज से गुस्सा होते हैं और किसी और चीज पे निकालते हैं, दैट इज अ बैड थिंग। अदरवाइज एंगर इज अ नॉर्मल इमोशन, जैसे खुशी एक नॉर्मल है इमोशन है, ऐसे गुस्सा भी एक नॉर्मल इमोशन है। अब आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो और बड़े, मतलब 9th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, कोई एक दो टेक्निक बताओगे कि जिससे मैं एंगर को कंट्रोल कर पाऊं? मुझे मान लो कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो एनीवन कैन रेज द हैंड एंड आई विल जस्ट आस्क हिम और हर कि कैसे। ओके, ओके, हास्य, प्रे टू गॉड, वेरी गुड। So that is one type of meditation. You just pray to some divine power and आप उस टाइम पे ठीक हो सकते हैं। आमिर, yes, you can unmute and answer. Sir, fake laughters, like laugh more and more, so you get some reliefness. Very Right. good. आमिर, I'll just ask one more question. क्या do you know कि जब हम laughter ये होता है तब मसल कितने यूज होते हैं, और एंग्री होते हैं तब कितने मसल यूज होते हैं फेस के? Sir, sorry that रफ I आइडिया, don't रफ know. आइडिया। Sir, while laughing, I think we only use our jaws, and while angry, there is stress on mind, and eyes get red, and you get some more emotions, and you get some other thoughts and everything. So there's a very job.
ओके, सो व्हाइल यू आर एंग्री, सी ऐसे एकदम गुस्सा हो जाते हैं तो देखो, मतलब दिस इज योर फेस, हाँ, सो योर आईब्रोज, योर फोरहेड्स, ये जो है ना सिर्फ, और आईज के मसल थोड़े से होते हैं, बट व्हेन यू आर हैविंग अ लाफ्टर और अ स्माइल, तो पूरे बॉडी, सी पूरे फेस पे ग्लो आ जाता है, सारे मसल्स जितने हैं उनके सब मसल्स यूज होते हैं, तो दैट इज वन थिंग कि भाई यू कैन लाफ, दैट इज वन थिंग. फिर क्रिश, Sir, it yes is Krish, you can dependent. answer. My idea is dependent upon everyone, each other. We should do the Yeah. thing we love, like we have hobbies to listening music. नहीं, I per- Krish, I'm giving you a situation. Say for example, अभी हमने या मल्हार था, मल्हार, गुड फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड क्रिश, Yes, sir. हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? Amir. आमिर. ओके, आमिर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, पर आज तुम दोनों मिले ना, तो आमिर ने तुम्हें एक जोरदार थप्पड़ मार दिया, तुम्हें गुस्सा आ गया, क्या करोगे तुम? सर हमारा तो है कि वो हम थोड़े मिनट के बाद अपने आप फिर बोलने लगते नहीं, मैं यही बोल रहा हूँ, थोड़े मिनट बाद बराबर है, बट देन उसने अभी एक जोरदार थप्पड़ मारा, तो व्हाट विल बी योर रिएक्शन? सर नथिंग. क्या करोगे तुम? सामने मारोगे? नहीं, नो सर. नहीं. Sir, but if we will react, the problem will be more. ओके, सो रिटेलिएट नहीं करोगे, किसी ने ऐसे किया, गुस्सा आया तो सामने नहीं मारोगे, वेरी गुड. कोई और है जो कुछ और तरीके से रिस्पॉन्स करेगा? अगर मैंने थप्पड़ मारा आपको, तो क्रिस से कि नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा, काम डाउन करूंगा, एकदम शांत रहूंगा. कोई और है जो सामने कुछ और करेगा? एनीवन, कोई भी, मतलब जो रेज हैंड करेगा यहाँ पे चैट में, तो वो बोल पाएगा. सब लोग ऐसे ही करेंगे. अगर मुझे किसी ने थप्पड़ मारा तो मुझे तो गुस्सा आ जाता है, मतलब आई कांट केयर, मुझे थप्पड़ मार दिया, ऐसे थोड़ा चलता है, मेरे ईगो को हर्ट किया. यस हे? Yes, sir. If any reason is not there and he is beating beating and going, so sir, I will also, sir, one time, two time, and then again he will do so. It is his fault. I will also respond. You will also respond. So okay, over here we'll just discuss few things. See, there are few things. कोई भी situation आती है ना, अभी मान लो कि एक बॉडी बिल्डर है, किसको नाम पता है, भूल गया, नाम लिखा है कि जो एकदम फेमस है, किसी ने लिखा, मारने दो, मार मार के थक जाएगा. ओके, हम इसके ऊपर भी आएंगे, ठीक है. बॉडी बिल्डर, से फॉर एग्जांपल आज सनी देओल है, एकदम बॉडी बिल्डर है, हाँ, वो आके मुझे मारेगा तो मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा ना, मैं डर जाऊंगा. सी, फर्स्ट रिस्पॉन्स इज फ्रीज रिस्पॉन्स. मेरा रिस्पॉन्स क्या, यार इतना ज्यादा बॉडी बिल्डर है, उसको मैं मार नहीं पाऊंगा, ठीक है, तो मैं एकदम फ्रीज हो जाऊंगा. यार कई बार फेंट रिस्पॉन्स आ जाता है, उसने मारा और मैं गिर गया, एक बार में हो जाता है. वो 2.5 किलो का हाथ जब गिरता है ऐसे, जब वो डायलॉग मारता है तो लोग गिर जाते हैं, वैसे गिर जाएगा, फेंट हो जाएगा. या तो फिर वो सिंघम जब मारने आता है तो भाग जाते हैं सब. सी, यू सी, फाइट फ्लाइट के भाग जाते हैं, मतलब जितने भी विलन होते हैं वो सब भाग जाते हैं. बट वन रिस्पॉन्स इज, आई विल एनालाइज कि क्यों ये मार रहा है. अगर कुछ रीजन नहीं है, देन आई विल ऑल्सो हैव समथिंग टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ. मैं कुछ भी करके अपना प्रोटेक्शन करूंगा. तो ये हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी होता है कि हमें सिर्फ कोई भी सिचुएशन है उसमें कौन सा रिस्पॉन्स देते हैं. यहाँ पे अगेन एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगा. एक रेस्टोरेंट था जिसमें दो फीमेल्स बैठी हुई थी, खाना खा रही थी, और सडनली एक कॉकरोच आ गया, तो क्या होगा? कोई भी, प्रियांशी, क्या होगा अगर इफ यू आर टेकिंग ब्रेकफास्ट इन अ रेस्टोरेंट और वहां पे एक कॉकरोच आ जाता है, तुम क्या करोगे? मीन्स खाने में दिख गया या ऐसे ही नीचे टेबल पे आ गया, जहां पे बैठे हो खाना खा रहे हो उसी टेबल पे एक कॉकरोच आ गया. कुछ नहीं, हटा दूंगी. हाँ, हटा दूंगी उसको. हटा दोगे, कुछ नहीं होगा ना तुम्हें. वेरी गुड. श्रेया, Yes, sir. क्या करोगे आप? Sir, हटा दूंगी. हटा दोगे. डर नहीं लगता तुम लोगों को कॉकरोच से? किसी को नहीं लगता? बहुत अच्छा. नॉर्मली ये होता है कि कॉकरोच देख के लोग डरते हैं, एकदम कूदने लगते हैं ऐसा. वेरी गुड दैट यू ऑल आर अ ब्रेव. बट एक रिस्पॉन्स ये भी हो सकता है कि वो डर जाते, दूसरा वो शांति से हटा दिया. सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन अ रिएक्शन एंड अ रिस्पॉन्स. आप अचानक से डरे नहीं, आपने रिस्पॉन्ड दिया कि हटा दिया. तो इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि हम उसको जाने. अब जब हम बात कर रहे हैं इमोशनल फर्स्ट एड की, तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि हम पहले तो ये आइडेंटिफाई करें कि हम इमोशनली कैसे हैं. दैट इज सेल्फ अवेयरनेस. सी,
आज क्लास में 43 पार्टिसिपेंट्स हैं टोटल इंक्लूडिंग मी, तो सबकी एक जैसी स्ट्रेंथ नहीं होंगी, सबकी अपनी अपनी अलग स्ट्रेंथ होने वाली है। सेल्फ अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो किसी की एक स्ट्रेंथ होगी, किसी की दूसरी स्ट्रेंथ होगी। तो कैन आई आस्क यू पीपल, फटाफट से चैट बॉक्स में लिखो क्या तुम्हारी स्ट्रेंथ है जो तुमको सबसे अलग बनाती है। यस, कोई भी लिख सकते हैं। अच्छा, एक ने लिखा आई एम गुड इन स्टडी, तो ये दैट इज योर स्ट्रेंथ। और यस स्टूडेंट्स, सिर्फ एक ही रिस्पॉन्स, रन, वेरी गुड। गुड इन फुटबॉल, सो ये फिजिकल आ गया, रन आ गया, स्टडी मतलब स्टडी स्किल्स आ गए, ये फिजिकल आ गया, रन और फुटबॉल। एंगर, somebody write me in private chat box, anger, cycling, music. I forgive people easily, but this is my strength and weakness too. Okay, now first thing, जिसने भी ये आंसर दिया है, I don't want के सबके सामने ये बोलो, but then see it's very difficult to forgive someone. आप जब किसी को forgive कर सकते हैं, that is definitely your strength. It's never your weakness. आज सबसे difficult होता है ना, see आप कितने लोग इजीली सॉरी बोल पाते हैं? फ्रैंकली बोलना, सी फ्रैंकली मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरी 10 साल की बेटी है छोटी, उसको मैं बोलता हूँ बेटा सॉरी बोलो, नहीं बोलेगी, ऐसे सॉरी बोलो, नहीं नहीं। सी इट्स वेरी डिफिकल्ट कि मैं सॉरी बोलूँ। तो अगर हम सॉरी बोलना डिफिकल्ट होता है तो सॉरी एक्सेप्ट करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। किसी ने मुझे थप्पड़ मारा और उसको दूसरे टाइम पे सॉरी यार मुझे माफ कर दे, ऐसा करे, तो देन इफ यू आर एबल टू फॉरगिव देन इट्स योर स्ट्रेंथ ओनली। इसलिए उसमें बी प्राउड दैट दैट्स योर स्ट्रेंथ। अब जब आप सबने ये लिखा है ना, स्ट्रेंथ सबने लिखी, हम सबने, किसी ने लिखा प्लेइंग विथ डॉग्स, सर माई कूल टेम्पर, म्यूजिक, ये सब स्ट्रेंथ हमने लिखी। तो इमोशनल फर्स्ट एड के लिए इंपॉर्टेंट है दैट वी आइडेंटिफाई आवर स्ट्रेंथ्स। हमारी स्ट्रेंथ क्या है वो हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, तो ही हम इमोशनली स्टेबल रह पाएंगे। सुबह सुबह मॉर्निंग में जैसे मैंने पूछा इज ऑल वेल, एवरीबडी सेड यस ऑल वेल, वी आर ऑल फ्रेश एनर्जेटिक, बट इज इट द थिंग्स रोज ऐसा होता है क्या? रोज हम एकदम फ्रेश होते हैं? कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सुबह सुबह उठना नहीं होता, मम्मी ने उठा दिया तो गुस्सा आ जाता है। कभी कभी होमवर्क करना था बाकी रह गया, टीचर ने बोल दिया तो अच्छा नहीं लगता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना होता है। अभी तो ये टाइम ऐसा है कि हम सब लोग लॉकडाउन में घर पे ही बैठे हैं, वर्चुअली एक दूसरे को मिल रहे हैं, अभी एक दूसरे से नहीं मिल पाना, ये भी एक प्रॉब्लम होता है कि नहीं होता? इस एज में आइडेंटिटी भी बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट होती है। मम्मी को हम बोले कि मम्मी मुझे मार्केट में जाना है, मैं साइकिल लेके जाऊं, माय सन इज इन 8th स्टैंडर्ड, तो मुझे बोलता है पापा आप साइकिलिंग के लिए जाते हो, मैं भी जाऊंगा। देन आई से नहीं अभी तो छोटा है। हाँ, तो कैसा हो जाता है कि क्यों मुझे मना कर रहे हैं? हाँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, ऐसे अंदर से होता है ना कि साइकिल तो चलाने को बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा बाइक चलाने को बोल रहा हूँ। बट देन पेरेंट के साथ थोड़ा कंफ्लिक्ट होने से थोड़ा सा इमोशनल ऐसा हो जाता है कि हमें लो फील होना चालू हो जाता है। कई बार इस एज में बहुत सारे इश्यूज आते हैं, उस इश्यूज की वजह से भी हम थोड़ा लो फील करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये उस टाइम पे हम इमोशनली स्टेबल रहे। नाउ क्वेश्चन फॉर यू इज, अगर मैं लो फील कर रहा हूं, या तो से फॉर एग्जांपल योर फ्रेंड इज फीलिंग लो, उसको डिप्रेशन है, सैडनेस है, कुछ भी है, तो आपको पता कैसे चलेगा दैट योर फ्रेंड इज सफरिंग फ्रॉम लो मूड या डिप्रेशन? चैट बॉक्स में फटाफट लिखेंगे। Can you repeat what? विधान, आई was not able to hear you. क्या कहा आपने? Can you repeat what you said? Okay. रिपीट में ऐसा है, से फॉर एग्जाम्पल योर फ्रेंड इज फीलिंग लो, मतलब उसको डिप्रेशन है, सैडनेस है, अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ भी है, तो आपको कैसे पता चलेगा दैट योर फ्रेंड इज सफरिंग फ्रॉम अ लो मूड? ओके, थोड़े आंसर्स चैट में आए हैं। ओके,
वेरी राइटली सेड बाय क्रिश कि अगर हम उसके क्लोज हैं तो जैसे बोलेगा ना तो पता चल जाएगा. वेरी गुड. मतलब जैसे माय फ्रेंड, अगर मैं बात करता हूँ और फोन पे ही है वो, फिर भी तो वो समझ जाते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है. तने सेड बाय हिज बिहेवियर. वेरी गुड. तमोगना, आई लाइक टू I'll say कि तुमने जो चैट में लिखा है वो बोलो सबके सामने. So, my opinion as to this kind of things would be to approach them and just converse with them and ask them directly, and instead of like doing it diplomatically by observing their behavior or by observing their talking and such, you should just ask them, especially if they're a close friend. Very good. Clap for Tamagna that agar if you feel that your friend is feeling low or depressed, then ask directly. See, होता क्या है पता है, अगर फ्रेंड होते हैं ना हमारे, वो कोई भी अच्छा फ्रेंड हो पर हमें पूछेगा ना कैसा लग रहा है, केम छो, આપણે ગુજરાતીમાં પૂછીએ તો કેમ છો, તો બધા એમ જ કે મજામાં. कोई ऐसे बोलता है नहीं मैं आज अच्छा मूड नहीं है, ऐसा कोई भी बोलता है. कोई भी नोन या अननोन आपसे पूछेगा, इवन इफ योर बॉडी लैंग्वेज आपके फेस से दिख रहा है यार ये तो एकदम रोतलू फेस लेके आया हुआ है, हाँ इसको कुछ जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है, फिर भी पूछेंगे क्या हुआ, नहीं कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ. सो दोबारा पूछो. इफ यू थिंक योर फ्रेंड इज फीलिंग लो तो उससे डायरेक्ट पूछना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उससे डायरेक्ट पूछो और तब तक पूछो जब तक वो बताता नहीं है. किसी और ने लिखा है कि बिहेवियर, संस्कृति ने लिखा बिहेवियर नेचर डिफरेंट हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, इंटरेक्शन नहीं करेगा, एपेटाइट चेंज दिखेगी. ओके, वी नो एंड दे आर ओके. बॉडी लैंग्वेज में क्या लगेगा, तुमने लिखा बॉडी लैंग्वेज कैसे? यस सर, बॉडी लैंग्वेज देखकर हमें पता चल जाता है कि वो किस तरह से बिहेव करता है, और जैसे कि यूजुअल डेज में वो कैसे बिहेव करता है उससे थोड़ा अलग बिहेव करता है, एकदम ऐसे बोलते हैं ना ढीला ढीला रहता है. बट यू नो तुम्हारी एज जो है ना एडोलेसेंट एज, इसमें द एडोलेसेंट्स और टीनेजर्स आर वेरी स्मार्ट. वो मास्क पहन लेते हैं ऐसे, मतलब इवन इफ यू आर फीलिंग लो एकदम स्माइल फेस रखेंगे, पता ही नहीं चलेगा कि ये एकदम वो है. तो उसमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एनीवन, कोई भी अनम्यूट करके बोल सकता है, रेज हैंड करके, या चैट में भी लिख सकता है. ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू. जब भी कोई लो मूड में होता है ना तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका स्लीप पैटर्न. आप देखो जब आपका मूड अच्छा नहीं होता, क्या आपको नींद आती है? नहीं आती. या तो फिर ऐसा होगा बहुत नींद आएगी, मूड अच्छा नहीं है ना तो सोते ही रहेंगे. तो change in your sleep pattern, that is one of the indicator that you are having some mental illness. Change in appetite, भूख ही नहीं लगी, मुझे भूख ही नहीं लगती, या बहुत ज्यादा भूख लगती है. सी ऐसा जब भी हो, सिर्फ एक मार्कर नहीं होता, इसके सब मार्कर्स को अगर हम साथ में लेते हैं तो फिर ऐसा हो सकता है कि ये हो सकता है. वे ऑफ स्पीकिंग, वेरी गुड प्रियांशी, कि वो जिस तरह से बात करता था, नॉर्मली हम जब भी बात करते थे तो पॉजिटिव बातें करते थे या कुछ करते थे, और उसमें अगर नेगेटिविटी आ जाती है तो हमें पता चलेगा कि ये लो मूड में है और इसको एक इमोशनल फर्स्ट एड की जरूरत है. नाउ ये सब चीजें हम क्यों आपके साथ डिस्कस करें पता है? योर एज, द एडोलेसेंट एज टिपिकली फ्रॉम 10 to 19, ये जो एज होती है ना, इस एज के अंदर बॉडी के अंदर बहुत चेंजेस आते हैं. देयर आर फिजिकल चेंजेस, देयर आर सेक्सुअल चेंजेस, देयर आर इमोशनल चेंजेस, देयर आर बिहेवियरल चेंजेस, सब चेंजेस होते हैं. अब छोटी छोटी बातों में ब्रेन की इमेच्योरिटी, नॉर्मली हम ये कहते हैं कि जो ह्यूमन ब्रेन है उसका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, यहाँ पे आगे जो आप लोग साइंस में पढ़ोगे शायद आगे मुझे पता नहीं, पर यहाँ पे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है. तो ये कॉर्टेक्स जो होता है वो थिंकिंग ब्रेन होता है हमारा, जिससे हम डिसीजन ले सकते हैं. एंड नॉर्मली ये इमेच्योर होता है, इसकी मैच्योरिटी अराउंड 25 ईयर्स पे आती है. तो एडोलेसेंट एज में ये मैच्योर नहीं होता. उसकी वजह से क्या होता है कि हम इम्पल्स में बहुत आ जाते हैं, और उसकी वजह से काफी बार ऐसी चीजें हो जाती है जिससे हमें इश्यूज हो जाते हैं. से फॉर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल मैं दूं कि द कॉमन थिंग, फैमिली में कोई फाइट हो रही है पेरेंट्स के बीच में, या फैमिली में कोई फाइनेंशियल इश्यू आ गया है, देन
एक्चुअली वो बड़े लोग जो हैं वो खुद उसको हैंडल करेंगे, बट यस हम उनके साथ रहते हैं तो हमारे दिमाग पे भी थोड़ा सा असर आता है, हम भी थोड़ा लो फील करते हैं। कई बार इस एज में ऐसा होता है कि ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्शन होता है या सेम सेक्स अट्रैक्शन, नाउअडेज वी जस्ट से अट्रैक्शन, अट्रैक्शन होता है मतलब लड़के को लड़की पसंद है या लड़की को लड़का पसंद है, कुछ भी है, पर उस टाइम पे सामने वाले ने मना कर दिया, देन ऑल्सो यू फील लो कि ये क्यों ऐसा मुझे मना कर रहा है या मना कर रही है। किसी भी रीजन से जब ये होता है तब ये इमेच्योर ब्रेन आपको थोड़ा सा डिसीजन लेना होता है, उसमें हेल्प नहीं कर पाता। फिर क्या होता है, आपको खुश रहना है, अब खुश रहने के लिए नॉर्मली बैड हैबिट्स या तो फिर सब्सटेंसेस यूज करना चालू करते हैं। जैसे आई सीन के स्कूल कॉलेजेस, पहले ये देखा था हमने कि कॉलेज में बच्चे स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, ये सब चीजें करते हैं जब वो डिप्रेस्ड मूड में होते हैं। Nowadays we are seeing the same in schools. Surprisingly in 5th standard while I was taking a session, एक लड़की थी 5th स्टैंडर्ड में जिसको घर पे बहुत इश्यू थे और उसको फिक्स आदत थी कि वो एक उसके पापा ये ऐसे हाथ में जो तंबाकू खाते हैं ना वो खाते रहते थे और उसको भी आदत हो गई कि जब तक वो खाती नहीं है तब तक उसको अच्छा नहीं लगता था। सो इफ यू आर फीलिंग लो, तो ये जब सब्सटेंस आप लेते हैं कोई भी, टोबैको, स्मोक, अल्कोहल, कोई भी, तो ये बॉडी के अंदर एक हार्मोनल चेंजेस लाते हैं जिससे आपके दिमाग में जो रिवॉर्ड सेंटर होता है उसको वो हाईजैक कर लेते हैं और फिर रिपीटेडली लेना पड़ता है। अगर हमें लो मूड है, आज हम यही बात करने वाले कि हमें इमोशनली स्टेबल रहना है और इन सब चीजों में नहीं जाना है, तो व्हाट आर द पॉजिटिव वेज बाय विच हम इमोशनली स्टेबल रह सकते हैं। तो आई जस्ट गिव यू वन सिनेरियो कि एक ग्रुप है क्लास में, उसमें 4 या 5 फ्रेंड्स हैं। एक लड़का सडनली उसका मूड लो रहने लगता है, उसके ग्रेड्स क्लास में जो मार्क्स आते थे वो कम आना चालू हो गए हैं एंड समहाउ ड्यू टू सम रीजंस द बॉय हैज स्टार्टेड स्मोकिंग आल्सो। अब ऐसा कोई भी अपना फ्रेंड है और हम चाहते हैं कि उसको इमोशनली स्टेबल करे, सो व्हाट वी कैन एडवाइज और हाउ वी कैन हेल्प, क्या कर सकते हैं? कोई भी रेज हैंड कर सकता है एंड चैट में भी लिख सकता है। यस Okay. Okay. Yes, Amir. So first of all, to analyze what's the problem is with him, with him or her, then we also analyze that what we should do to help him, what we can do, what others are doing for him, or for any other reason he's sad, or like if my friend has some low mood, so for what reason, or if there is a third person behind it, so we should talk with them. Amir, come to practical directly. I'm your friend. Okay. मुझे अच्छा नहीं लग रहा है and I started smoking. So now you can ask me anything and advise me anything. So first of all, like smoking is very bad. So first of all, let's stop smoking. अरे आमिर, मैंने तो सिर्फ एक बार ही लिया है, वो तो क्या एक बार बट सर एक बार लेने से फिर आदत पड़ जाती है। अरे एक बार क्या, हम रोज तो जंक फूड खाने थोड़ा जाते हैं, हम कभी कभी पिज्जा बर्गर खाते हैं, ऐसे मैंने एक बार स्मोक कर लिया, उसमें क्या हो गया यार? सर बट वो आदत, एडिक्शन तो हो ही जाता है ना, because sir junk food is a different topic and smoking is a different topic. Junk food तो सर सब लेते हैं and yeah it is bad but sir it is not injurious. मैंने अभी पढ़ा था आमिर कहीं पे कि जो टीनेजर्स होते हैं ना उसमें से 80% होते हैं जो कभी ना कभी स्मोक तो करते ही हैं, तो उसमें एक बार लेने में क्या हो गया? Anyone else if they want to ask me anything? Yes, Dhairya. सर मेरे पापा एक चीज बोलते हैं कि जहर थोड़ा ले तो भी इंसान मर जाता है और ज्यादा ले तो भी इंसान मर जाता है। Dhairya, you are not audible to me. Hello sir, am I audible now? Yeah. सर मेरे पापा एक ही चीज बोलते हैं कि जहर थोड़ा ले तो भी मर जाते हैं और ज्यादा ले तो भी मर जाते हैं। Very good, clap for Dhairya. थोड़ा लेते हैं तो भी मर जाते हैं और ज्यादा लेते हैं तो भी मर जाते हैं। Now
यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी एडोलेसेंट एज में, जैसे मैंने आपको बताया ना पहले ही, कि स्मोकिंग पहली बार जब हम करते हैं ना, हम करते हैं इन द सेंस जब भी कोई भी करता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, इट्स अ क्यूरियोसिटी कि यार ये पापा कर रहे हैं, ये अंकल कर रहे हैं, ये हीरो कर रहा है। मूवी में हमने देखा, ये रुस्तम मूवी में देखा, वो कैसे स्मोक कर रहा था और एकदम फटाफट से सबको मारने लगा। वो एक क्यूरियोसिटी होती है कि जब वो ले रहा है, स्मोक कर रहा है या ड्रिंक कर रहा है, तो उस टाइम पे वो एकदम हीरो बन जाता है। तो चलो मैं भी एक बार ट्राई करता हूँ। नाउ ये एक बार ट्राई करने की जो क्यूरियोसिटी इस एज में आ जाती है, उससे क्या होता है, ब्रेन का जो रिवॉर्ड सेंटर है, मैंने पहले ही बोला था, उस रिवॉर्ड सेंटर को एक किक मिलती है। नॉर्मली आप देखोगे ना, तो जो भी स्मोक कर रहा है वो बोलेगा कि मैं स्मोक करता हूं तो मुझे किक मिलती है, आई फील हाई, ऐसे। बट देन दैट इज अ निकोटिन, जो निकोटिन बॉडी के अंदर ब्रेन के रिसेप्टर होते हैं उसको ब्लॉक करता है। अब वो ब्लॉक करने के बाद क्या होता है, टू गेट द सेम किक दूसरी बार डबल डोज लेना पड़ेगा, तीसरी बार उससे भी डबल डोज लेना पड़ेगा, एंड देन द हैबिट फॉर्म विल बी देयर कि अगर मैं ये नहीं लेता तो प्रॉब्लम होती है। सो बेटर इज टू अवॉइड इट। सी लंग कैंसर के जितने भी पेशेंट हैं एडल्ट्स में, उनमें से सर्वे किया गया तो ये देखा गया कि 80% आर स्मोकर्स, और उस 80% से जो टीनेज में स्मोक करना चालू किया था उनको कैंसर होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा थी। सो इन आवर एज इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट वी स्टे अवे फ्रॉम दिस। नाउ अगर मेरा मूड लो है तो ये एक वे था जिससे किक मिली और मेरा मूड हाई हो गया, तो मैं क्या और कर सकता हूं जिससे मेरा मूड बेटर होगा, एंड दैट इज आवर इमोशनल फर्स्ट एड। तो हम क्या अपने फ्रेंड को एडवाइस करेंगे, हम उसको मना करेंगे ना। सी इस एज में ये देखो, मम्मी ने बोला ना कि ये मत करना बेटा, तो वो करने का पहले मन होता है। पापा ने बोला ये मत करना बेटा, वो मैं एज में सब कुछ कर सकता हूं तो मुझे ये करने का मन ज्यादा ही होता है, तो वो नहीं करना है। उससे अच्छा है हम ये बोलेंगे कि क्या करें। सो समबडी सेड के उसके साथ टाइम, संस्कृति सेड दैट ओके, उसको टाइम दो एंड इंपॉर्टेंस दो, फाइन, फीड हिम और हर विद पॉजिटिविटी, ओके। सो इंपॉर्टेंट थिंग somebody said, yes Tamogna, you want to say something? Yes, so like in this such scenarios, first of all, what I already told before, we have to talk to them and try to find out what is exactly the problem. And secondly, we need to convince them to let go of smoking, as others have already said, because even if it is done once, it could there is a chance that it may become addiction. So we have to, first of all, convince them, and secondly, we have to accept their feeling that they are feeling sad. We can't just keep trying to show them positive side. We have to listen to them, see what is the problem, and then we need to be very careful what we do as well, because if we act too much on impulse in such scenarios, we may end up hurting them more than actually helping them. So we should take such things into consideration, and then finally we should help them. And if there is a chance that we are unable to do so, you could also consult someone like who is a professional or who you trust. You could ask them for some advice regarding friends, etc. Very good. Especially in this day of like internet and stuff, there are a lot of websites and etc. where you can ask these things, such questions as in what to do when your friends are going through such problem, when you are going through such problems. So yeah, you can consult the internet as well. I'll just differ here, Tamogna, that instead of going to a website, talk to someone, because I'm glad that Krish has written, listen to him or her. See, यहाँ पे जो मिस्टेक कॉमनली हम करते हैं एडोलेसेंट इश्यूज में, इमोशनल चीज में, वी प्रीच अ लॉट, हम बहुत ज्यादा एडवाइस दे देते हैं। उससे अच्छा है सुनो मैंने स्मोकिंग क्यों किया। सी व्हेन आई आस्क दिस टू एडोलेसेंट्स जो आते हैं ऐसे, जिनके पेरेंट्स में ये इश्यू होता है, बोलते दादाजी रोज मेरे से मंगाते थे, तो मैंने कहा मैं भी एक बार ट्राई कर लेता हूँ, उसमें क्या है। सेकेंड आंसर ऐसा भी आता है, मेरे ग्रुप में 4 जने हैं जो स्मोक करते हैं, उन्होंने मुझे फोर्स किया कि अगर तू स्मोक नहीं करेगा तो हमारे ग्रुप में नहीं रहेगा। आई डोंट वांट टू ट्राई, बट उन्होंने ऐसा फोर्स किया इसलिए मैंने ट्राई किया। सो इफ यू लिसन टू देम यू विल कम टू नो द रूट कॉज कि क्यों उन्होंने चालू किया ये। सेकेंड, डोंट एडवाइज मच अबाउट अ कैंसर। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना अभी, ये एग्जांपल कैंसर का, इस एज में यही होता है सबको कि हम बोलते हैं ना कैंसर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इफ यू से ना कि तुम्हारे मुंह से स्मेल बहुत आएगी, कोई फ्रेंड्स तुम्हारे नजदीक नहीं आएंगे, हाँ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो होंगे अगर तो वो भी नहीं होंगे, ऐसे स्टेन हो जाएंगे दांत, टीथ एकदम खराब हो जाएंगे, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। थर्ड, पॉजिटिव, जो तमोग्न ने बोला कि पॉजिटिव चीजें हमें उसको याद करानी है। सी व्हेन आई सेड दैट यू व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, दोज ऑफ यू हु आर डूइंग अ रेगुलर एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज,
चाहे वो साइकिलिंग कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, डोंट यू थिंक कि जब आप एक्सरसाइज करते हो, व्हेन यू परस्पायर अ लॉट, उसके बाद दिमाग एकदम फ्रेश हो जाता है, कोई भी थॉट दिमाग में होता है वो पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? बिकॉज द बॉडी सीक्रेट्स एंडोर्फिन हार्मोन। तो ये जो नेगेटिव चीजें हैं उससे दूर रहने के लिए एक तो पॉजिटिव सेल्फ रियलाइजेशन कराना है, और दूसरा समथिंग विच यू लाइक द मोस्ट, आपको जो सबसे ज्यादा पसंद है वो अगर आप करना शुरू करेंगे तो अच्छा हो पाएगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द पॉइंट दैट जब इमोशनली कोई डिस्टर्ब होता है तो उस टाइम पे हम सबको, जैसे एंगर में हमने बोला था ना ऐसे कि भाई हाँ मुझे गुस्सा बहुत आता है, सबने बोला था ऐसे, ऐसे लो फील करना भी बहुत कॉमन है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं अगर बहुत आपके सामने बैठा हूँ, डॉक्टर हूँ, तो मैं लो फील नहीं कर सकता। सी इन कोविड टाइम वी हैव सीन दैट 1/3 of the population, mark the word, 1/3 of the population sometimes had a low mood. वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज पे फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। बट इफ योर सिम्टम्स, जो हमने आगे भी डिस्कस किए लो मूड के सब कुछ, इफ दे परसिस्ट फॉर मोर देन 2 weeks, देन बेटर टू टेक अ प्रोफेशनल एडवाइस। क्यों प्रोफेशनल एडवाइस? सी जैसे मैंने बोला वैसे हमें जब फीवर होता है तब हम क्या करते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं, हेडेक है तो भी चले जाते हैं। तो अगर लो मूड होता है उस टाइम पे भी अगर हम एडवाइस ले लेते हैं प्रोफेशनल, तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। See, if many of you may be knowing Deepika Padukone, right? उसको डिप्रेशन हुआ था, and see, जब डिप्रेशन था, then she used to say, मेरी शूट चल रही थी, मैं अंदर से लो फील कर रही थी, पर मुझे एक्ट करना था, हंसने का, सबके साथ मिलने का, और बहुत ही खराब लग रहा था। बट जब मैंने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट योर इमोशन दैट आई एम फीलिंग लो, इट्स ओके, कोई भी लो फील कर सकता है। तो उस टाइम पे एक्सेप्ट करने के बाद प्रोफेशनल हेल्प लिया, देन यू सी उसके बाद की उसकी मूवीज का ग्राफ देखो, उसका सक्सेस का ग्राफ देखो, ऊपर जाने लगा। सो देयर इज, पहले ये देखा जाता था, हम लो मूड मतलब ये बोलते हैं ना साइकियाट्रिस्ट के पास जाने का, तो लोग भी यही बोलते थे पागल के डॉक्टर के पास गया है, और हम भी ये बोलते थे क्या मैं पागल थोड़ा हूं कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाऊं। बट नाउ इट इज साइकियाट्रिस्ट इज द सेम डॉक्टर। हाँ, जैसे फिजिकल इंजरीज है तो हम सिंपल फिजिशियन के पास जाते हैं, ऐसे मेंटल इंजरीज है तो हम मेंटल एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं। नाउ इफ वी वांट कि हमारा दिमाग एकदम शांत रहे या हम पॉजिटिव मूड्स में रहें, तो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो उसके थोड़े से एग्जांपल मैं आपको दूंगा। यहाँ पे एक सिंपल गेम जैसा हम खेलेंगे, एंड आई जस्ट वांट कि आप लोग उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा कि अभी रिजल्ट आने वाला है, तो व्हेन माय रिजल्ट्स आर गोइंग टू कम, आई एम फीलिंग, जिसको जो फील हो रहा है वो चैट बॉक्स में लिख सकता है कि अभी मेरा रिजल्ट आने वाला है एग्जाम का, and I'm feeling. Okay, happy, excited and scared, curious, sad, nervous. Fine. I feel excited, nervous and curious, तीनों चीजें। Okay. तन्मुग्ना said, sir, unchanged, कोई फर्क नहीं पड़ता। Very good. So relieved, nervous and angry. Okay. So when you people have replied like this, so let me tell you, जिसने बोला ना अनचेंज, वो मेंटली स्टेबल है एकदम, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने मेहनत की हुई है तो उसका रिजल्ट आने ही वाला है। जिसको ऐसा नर्वसनेस फील हो रहा है उसको सिर्फ यही करना है कि इफ आई वर्क हार्ड फॉर अ ईयर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता एग्जाम का रिजल्ट जो भी है। हमारे यहाँ पे क्या हो गया है, सी वी ऑल हैव सेट एक्सपेक्टेशंस एंड बेंचमार्क्स कि जिसके भी मार्क्स ज्यादा आए वो इंटेलिजेंट है, उसका इंटेलिजेंट क्वेश्चन ज्यादा है। हाँ, जिसके 90% है वो ज्यादा इंटेलिजेंट, जिसके 95 है उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट। बट दैट डजंट मीन कि जिसके 80% है वो इंटेलिजेंट नहीं है। हम सब लोग इंटेलिजेंट क्वेश्चन पे अगर फोकस करें उससे ज्यादा अच्छा होगा हम इमोशनल क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करें। अब इमोशनल क्वेश्चन अगर अपना हाई है, हमारा हाई है, तो ऐसा रहेगा कि हम ज्यादा आगे सक्सेसफुल हो पाएंगे। आई जस्ट गिव वन एग्जांपल दैट एग्जाम के टाइम में जब 3 इडियट्स मूवी सबने देखी होगी, शायद देखिए,
एग्जाम का रिजल्ट जब आने वाला होता है तब क्या था कि कोई ऐसे भगवान को प्रे कर रहा है ऐसे कि भगवान प्लीज पास करा दे, मैं रोज आके एक नारियल चढ़ाऊंगा, मैं नाग वो था उसको मैं दूध पिलाऊंगा, मैं रोज पैसे दूंगा, मैं ये वीटी पहनूंगा, ये सब करूंगा, वो सब कर रहे थे। बट जो स्टेबल थे उन्होंने क्या किया, वेट किया सिर्फ। इवन यू सी द रेंचो जो था उसने अपना रिजल्ट देखने भी नहीं किया कि उसने टॉप किया है कि नहीं किया है। एंड यू सी द चतुर, वो सेकंड, उसका रैंक सेकंड था, फिर भी वो रो रहा था कि यार मैं सेकंड आ गया। तो ये लाइफ की रेस में हमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ मार्क्स ज्यादा है। इफ यू आर हैविंग अ गुड इमोशनल क्वेश्चन, क्यों मैं अगेन बोल रहा हूँ, आप देखो कि जिसके रैंक्स मार्क्स आ रहे थे उसके साथ साथ उसके पास इमोशनल क्वेश्चन भी था, वो फ्रेंड्स को हेल्प भी करता था। तो ये बहुत जरूरी होता है कि हम स्कूल में सिर्फ ये ना सीखे कि मार्क्स कैसे ला रहे हैं, बट हम ये सीखे, शेयरिंग सीखे, हम केयरिंग सीखे। स्कूल में हम आते हैं और हम देखते हैं, आई स्टिल रिमेम्बर, सी टुडे आई एम अ डॉक्टर, बट यू नो माय फाइनेंशियल कंडीशन वाज नॉट गुड, सो आई वाज नॉट, मतलब स्कूल में जो टीचर्स पढ़ाते थे वही पढ़ पाता था, ट्यूशन नहीं ले पा रहा था। 12th में मैं आ गया, देन इट वाज कंपलसरी, मतलब 12th तो बोर्ड हो गया ऐसे, अगर उसमें आपने ट्यूशन नहीं लिया तो मार्क्स नहीं आएंगे। अनफॉर्चुनेटली जिस स्कूल में मैं गया वहां पे ऐसा था कि सबके ट्यूशन थे, हम लोग क्लास में 52 से मेरे अकेले के नहीं थे। सो फोर्सफुली सबने ऐसे किया कि नहीं ट्यूशन लेना ही पड़ेगा, तो कुछ भी जुगाड़ करके वो पैसे इकट्ठे करके ट्यूशन के लिए तैयार हो गया। बट देन द इश्यू वाज रोज सुबह जल्दी जाना, मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए साइकिल भी नहीं थी तब, कैसे जाऊंगा। सो आई हैड वन गुड फ्रेंड जो अभी बीट्स पिलानी में था एंड देन नाउ ही इज इन बैंगलोर, वो रोज मुझे पिक करने आता था। सी दैट वाज अ फीलिंग ऑफ शेयरिंग के चलो हम तुम्हें लेके चलते हैं, केयरिंग, वो लेके चलता था। एंड आज मुझे वो याद है कि वो मेरा फ्रेंड मुझे लेने आता था। दोपहर को जब मैं बैठता था तो दूसरा एक फ्रेंड था जो उसके घर ले जाता था मुझे, और वहां पे हम 1 घंटा वेट करके दूसरे क्लास में जाते थे। रिटर्न में मैं क्या करता था, मैं उसको थोड़ा पढ़ा देता था। वो कलेक्टर का बेटा था, बट देन उसका मैथ्स थोड़ा सा कमजोर था, मैं उसको थोड़ा पढ़ा देता था। बट वो जितनी भी शेयरिंग थी सबकी, उससे इतना है दैट आफ्टर 25 years ऑल्सो वी आर स्टिल अ गुड फ्रेंड्स। सी आज मैं डॉक्टर बन गया, वो इंजीनियर बन गया, वो कलेक्टर का जो बेटा था वो एक स्कूल का प्रिंसिपल बन गया है अभी, हाँ, बट वी ऑल आर अ गुड फ्रेंड्स। तो ये बहुत जरूरी है कि हम जो भी प्रॉब्लम्स हमारे फ्रेंड्स के होते हैं उस टाइम पे एक दूसरे को सपोर्ट करें एंड देन वी स्टे विद देम। सेकेंड, जब भी किसी को आपको लग रहा है ना कि लो फील कर रहा है, तो सिर्फ एक, बीच में किसी ने चैट में लिखा था, आई जस्ट फॉरगॉट, स्टे विथ हिम और हर। ओके, ये एक पर्सनल क्वेश्चन आया है जो मैं बताता हूँ, बट किसी ने लिखा था कि जब किसी का मूड लो है तो उस टाइम पे उसके साथ रहो। सी आप देखो, मार्क्स ही नहीं आए, ऐसा कर दिया, ठीक है, मैं एकदम नर्वस फील कर रहा हूँ उस टाइम पे, और उस टाइम पे अपना दूसरा फ्रेंड हो वो भी सेम बोलेगा, मेरे पापा ने भी यही बोला, कैसा अंदर से लगेगा। दोनों के मार्क्स कम आए पर दोनों को ऐसा लगेगा कि ठीक है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट दैट डजंट मीन कि हमें एफर्ट्स नहीं करने। सी इस एज में आप याद रखो, आप अगर एफर्ट्स करते हैं तो मार्क्स बाय प्रोडक्ट की तरह आने ही वाले हैं। आपने जब मेहनत की हुई है, पूरे साल ध्यान से पढ़ा हुआ है, क्लास में पढ़ा हुआ है, मेहनत करके पढ़ा हुआ है, तो वो आने वाले। बट अगर वो कम भी आ जाते देन ऑल्सो फर्स्ट यू एक्सेप्ट इट, एंड सेकेंड पेरेंट्स को भी हम यही बोलते हैं कि एक्सेप्ट करो। मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल दूंगा कि जो मेरा फ्रेंड था जो 10th में ड्यू टू सम रीजंस, हम रीजंस की बात नहीं कर रहे क्यों, और उसके मार्क्स नहीं आ पाए। हम सब ने 11th में साइंस ले लिया, वो आगे पढ़ना चाहता था और उसको साइंस में एडमिशन नहीं मिल रहा था क्योंकि मार्क्स कम थे। व्हाट ही हैज डन, उसने डिप्लोमा किया, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया, डिप्लोमा करने के बाद डिग्री किया। जो नॉर्मली 12th के बाद हम डिग्री 4 साल में लेते हैं, वो लेने में उसको 6 से 7 साल लग गए। बट टुडे ही इज वेल सेटल्ड इन दुबई। क्यों? उसने डिसाइड कर लिया था कि ठीक है, एक बार फेल हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार मार्क्स कम आ गए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आई विल बाउंस बैक। जो रेजिलियंस था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इस टाइम पे ये बहुत जरूरी याद रखना जरूरी है कि इस टाइम की कंपटीशन में 10th 11th 12th ये ऐसी चीज है जब हम, कई बार ऐसा होता है, सी हमने देखा हुआ है कि आई अगेन शेयर वन पर्सनल एग्जांपल
कि मैथ्स हम सबका बहुत अच्छा था, हम 4 फ्रेंड थे, सबके 150 में से 150 आते थे, फिक्स कि वो 150 में से 150 आने चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सब ने मैथ्स इतना अच्छे से पढ़ा था। नाउ इन अ हरी इन एग्जाम मैंने एक सम राइटअप जो इनिशियल था ना वो गलत लिख दिया, तो वो 3 मार्क्स का सम पूरे का पूरा गलत हो गया एंड आई गॉट 147 और बाकी के तीनों के 150 आए। सो ऐसा हो गया कि यार पूरे साल मेरे 150 आते रहते थे और लास्ट की एग्जाम में जब दिया तो 3 मार्क्स चले गए। वो जो दुख हुआ, और उससे कोई फर्क पड़ा, मैं भी डॉक्टर बना, वो भी डॉक्टर बने। आज क्या होता है पता है, जब मेरा बेटा 8th का मैथ्स कर रहा होता है ना, तो आज मैं उसको मैथ्स कराता हूँ, मैं करा पाता हूँ। इवन इफ आई एम अ डॉक्टर, मैं उसको मैथ्स करा सकता हूँ। मैं उसको साइंस तो डॉक्टर हूँ इसलिए करा लूंगा, बट मैथ्स भी करा लेता हूँ, तो वो मेरे लिए काम का है। इसलिए कभी भी अगर कोई भी ऐसा सेटबैक आता है तो उससे वापिस डिप्रेस होने की कोई जरूरत नहीं है। यू कैन ऑलवेज बाउंस बैक एंड अच्छा कर ही सकते हैं। लास्ट एग्जांपल देखिए, फिर थोड़े से क्वेश्चन आंसर हम लेंगे जो आपको पूछने होंगे। एक ओलंपिक की कंपटीशन हो रही थी, वहां पे एक 1938 की बात है। सो इन 1936 किसी को पता है इसके बारे में? somebody was nodding the head. Manar, you know the story? Okay. सो 1938 में ओलंपिक आने वाले थे एंड 1936 में एक शूटर था जो पिस्टल शूटिंग कंपटीशन में पार्ट लेने वाला था। हंगेरी से था वो। ही वाज द बेस्ट शूटर इन द नेशन, उसके जैसा कोई नहीं था। एंड उस टाइम पे क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर चालू हो गया था एंड वर्ल्ड वॉर में उसके राइट हैंड को इंजरी हो गई। जिस हाथ से वो प्रैक्टिस करता था, जिस हाथ से वो एकदम बेस्ट पिस्टल शूटिंग करता था, उसको इंजरी हो गई एंड सबको लगा कि इसकी तो लाइफ खत्म हो गई। सी, इफ यू आर अ राइटी और आपका राइट हैंड चला जाए तो आपको ऐसे ही लगेगा कि मैं क्या करूंगा, मेरा मेन डोमिनेंट हाथ चला गया, अब मैं क्या करूं। बट यहाँ पे जो नेवर गिव अप, जो रेजिलियंस है ना, ये यहाँ पे आता है। उसका ड्रीम था कि मुझे ओलंपिक जीतना है, ठीक है। तो उसके पास ऑप्शन था कुछ, एक हाथ चला गया पर दूसरा हाथ तो है ना, लेफ्ट हैंड। नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट। सी, यू आर 28, आप 28 साल के हो और राइट हैंड से 28 साल से आप प्रैक्टिस कर रहे थे पिस्टल चलाने की, और वही हाथ चला गया, अब लेफ्ट से चालू करना है। अभी आप देखो, लेफ्ट से लिखना जाओगे तो नहीं लिख पाओगे, हम राइट से लिखते हैं तो लेफ्ट से नहीं लिख पाएंगे, डिफिकल्ट होता है। बट इज इट इम्पॉसिबल? नो, इम्पॉसिबल तो नहीं है, डिफिकल्ट है पर इम्पॉसिबल नहीं है। उसने ट्रेनिंग चालू की लेफ्ट हैंड से एंड देन इट हैपेंड कि 1937 में अगेन नेशनल राउंड हो रहे थे, जिसमें वो गया तो सबको लगा कि कितना बहादुर है, मतलब हम सबको मोटिवेट करने आ गया यहाँ पे। किसी को पता नहीं था कि वो लेफ्ट हैंड से 1 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, और सबने उसको बोला कि थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग। उसने कहा मैं मोटिवेट करने नहीं आया हूँ, यहाँ पे मैं जीतने आया हूँ। सबको उसने ऐसे बोल दिया कि आई एम नॉट हियर टू मोटिवेट यू, आई एम हियर टू विन द गेम। एंड उसने लेफ्ट हैंड से 1937 में अपने नेशनल कॉम्पिटिशन जीत ली। तब सबको पता चला कि 1 साल से वो जो प्रैक्टिस कर रहा था, वो प्रैक्टिस से वो जीत पाया। बट दैट वाज नॉट हिज ड्रीम। ड्रीम क्या था? ओलंपिक जीतना। सी, नेशनल कंपटीशन जीतना ड्रीम नहीं था, उसका ड्रीम था ओलंपिक जीतना। सो 1938 में वो ओलंपिक में गया कि भाई अभी ओलंपिक जीतना है। बट अगेन मैंने कहा ऐसे वर्ल्ड वॉर था, सो ओलंपिक कैंसल्ड हो गया। 4 साल बाद ओलंपिक आता है 1942। अब उस टाइम पे उसकी एज थोड़ी बढ़ गई थी, बट अगेन वर्ल्ड वॉर चल ही रहा था अभी, तो वो भी कैंसिल हो गया। 1946 अब वापस ओलंपिक आया। उस टाइम पे उसकी एज भी बहुत बढ़ गई थी, और बाकी सारे यंगस्टर्स जो होते हैं, आप देखो अभी अगर मैं कहीं पे दौड़ने जाऊंगा तो मेरे साथ मेरा बेटा दौड़ेगा। आई स्टिल रिमेंबर कि अभी हम दोनों साइकिल 2 साल पहले चला रहे थे, तो मैं उससे फास्ट चलाता था, अब वो मुझसे फास्ट चला लेता है, जस्ट बिकॉज यूथ में पावर ज्यादा होती है। तो उसको compete करना था यंगस्टर्स से। बट दैट ओलंपिक ही मेड अ रिकॉर्ड एंड विन द ओलंपिक। गोल्ड मेडल मिल गया उसको, ठीक है, गोल्ड मेडल मिल गया। यहाँ पे वो रुका नहीं। सी, उसका ड्रीम जो था कि मुझे ओलंपिक जीतना है, तो उसने उसके लिए मेहनत तो की, जीता। बट नेक्स्ट ओलंपिक में वो वापस जीता एंड उसने रिकॉर्ड बनाया। सिर्फ एक बार गोल्ड तो सबको मिलता है, पर उसने 2 बार गोल्ड जीता। इससे सिर्फ यही होता है कि अगर आपको सेटबैक्स आया कोई भी, उससे वापस जाना जरूरी नहीं है। योर स्ट्रेंथ वाज कि आप फोकस करके लड़ सकते थे, एंड देन यू हैव मेड अ पॉइंट कि आप वो लड़ पाए। ये स्टोरी के एंड में यस, तनय इज सेइंग यस आई नो। तनय, कैन यू से द नेम ऑफ दैट पर्सन?
So I don't know the name, but I had seen in the You read Sandeep the story. Maheshwari motivation. Fine. The name of the person was Keroli, and he was from Hungary. He is the person जिसने ये सेटबैक का एग्जांपल दिया. ये तो सिंपल एक एग्जांपल दिया था. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे यहाँ पे भी होंगे. क्या आपने कभी सोचा है कि माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना चाहिए? किसी ने भी इसमें से? While talking to a session like you peoples, yes, Krish said yes, करना चाहिए. Years back in one school, when I asked this question, one of the girls said, yes sir, I want to conquer the mountain. You know, उसने एक लड़की ने ऐसे बोला कि yes, मुझे से माउंट एवरेस्ट पे जाना है. And you know what? She, along with her sister, she climbed the mountain, Mount Everest. She became the second pair of sisters from world to climb to Mount Everest. 2 sisters एक साथ गई हो, ऐसा पहली बार ऐसे हुआ. Not only Mount Everest, she climbed more 5 peaks. There are 7 peaks in a world. कि जहाँ पे आपको जाना बहुत डिफिकल्ट होता है. एंड ये दोनों लड़कियां 5 पीक पे जा चुकी है और अभी कोविड टाइम में ऐसी प्रिपरेशन कर रही है कि दे आर गोइंग फॉर वन मोर इन नेक्स्ट ईयर. दे आर फ्रॉम सूरत, इसलिए मैं बोल रहा हूँ. सो इफ यू डिसाइड एनीथिंग तो आप कर सकते हैं. सिर्फ इमोशनल स्टेबिलिटी लाने की जरूरत है. एंड एट लास्ट, इन सब के बीच में जब भी आपको कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, टॉक टू योर फ्रेंड्स. आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात करो, बहुत अच्छे से उसका सॉल्यूशन आ जाएगा. टीचर्स के साथ बात करो, पेरेंट्स के साथ बात करो, एंड सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग इज देयर. Thank you very much, students. We are having few more minutes and you can just ask some questions. Yeah. Okay. एक personal question आया है कि sir, there is a bad mindset in everyone's mind about 10th. How to handle it? Student जिसने भी ये पूछा है उसको मैं ये बताना चाहता हूँ. 10th and 12th, अनफॉर्चुनेटली हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है इसके अंदर ये 2 बेंचमार्क्स ऐसे हैं कि जिसमें आपको परफॉर्म करना ही होता है. अगर आप नहीं कर पाते तो आपको चॉइस की ब्रांच नहीं मिलती. बट दैट इज नॉट द एंड. मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया था, 10th में हमारे एक फ्रेंड है जिसको इवन आफ्टर डूइंग द एफर्ट्स, सी इफ यू डोंट डू एफर्ट्स, आप पढ़ते नहीं है, आप मेहनत नहीं करते, देन इट इज योर फॉल्ट. बट इवन अगर आपने मेहनत की हुई है, आपने पूरा 100% दिया हुआ है, उसके बाद भी अगर रिजल्ट नहीं आता, देन यू कैन ट्राई सेकेंड टाइम. सेकेंड टाइम मतलब अल्टरनेटिव वेज में कर सकते हैं, एंड देन यू विल एक्सेल इन योर फील्ड्स. एनीवन एल्स? किसी और को कुछ पूछना है? अदरवाइज Scholars, if you have any question, you can raise your hand also. Anyone who wants to speak up something or ask anything? Girl power, where are you all? Okay. Sorry. One student asked, sir, what should we do in a situation we should tell the truth but we lie? Fine. Student, the first thing is, see, if you lie once, temporarily it will help you. कि मार्क्स कम आए और घर जाके हमने बोल दिया कि नहीं, मैं तो बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, देखा नहीं, पर वो पता तो कभी ना कभी चलने वाला ही है. So, if you say truth, I'll give you example कि आपको पसंद है कि 12th के बाद मुझे तो फोटोग्राफी करनी है, मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है. जो मूवी का एग्जांपल है वही मैं आपको दे रहा हूँ. तो आपने पापा के सामने झूठ बोल दिया, ठीक है पापा, मैं इंजीनियरिंग अच्छे से कर लूंगा. बट देन यू आर लाइंग, एंड फ्रॉम दैट लाई व्हाट विल हैपन कि आपको जो अपना बेस्ट देना है वो आप उसमें कभी नहीं दे पाओगे, रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, और फिर बाद में फ्रस्ट्रेशन आएगा, बाद में लो मूड होगा. उससे अच्छा है कि जब भी हमने कोई गलती की है तो उस टाइम पे एक्सेप्ट करना जरूरी होता है, सच बोलना जरूरी होता है, और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं ना, देखो मैं ये बोलूँ कि अगर गलती से हमसे पहली बार जब कोई गलती होती है और हम झूठ बोलते हैं तो उससे बच जाएंगे, दूसरी बार भी शायद बच जाए, पर बार बार नहीं बचेंगे, और जो लास्ट में उसकी पनिशमेंट मिलती है वो ज्यादा खराब होती है. सो इट्स ऑलवेज गुड कि हम सच बोलें.
पहली बार में अगर हमने बोल दिया, जैसे आज मैंने, मेरे बेटे ने बोल दिया कि पापा हमने तो अपना एक फ्रेंड है ना उसको पोपट पोपट करके बहुत चिढ़ाया। नाउ कंप्लेन टीचर की ऑलरेडी आ चुकी थी कि योर चाइल्ड इज बुलिंग समवन इन अ क्लास। हाँ, अगर उसने नहीं बोला होता तो भी पता चलने वाला था, पर उसने बोल दिया एंड देन ही सेड कि मेरे से गलती हो गई। सी व्हेन यू सेड, आई से ना कि सॉरी बोलना बहुत डिफिकल्ट होता है इस एज पे, तो टिपिकली आई मीन किसी भी एज पे, आज भी अगर मुझे कोई बोले कि सॉरी बोलो तो थोड़ा तो ऐसे होता है कि क्यों सॉरी बोलो, तो वो नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा से अगर गलती है तो उसको स्वीकार करें, और कोई प्रॉब्लम नहीं है सच बोलने में। ओके, किसी ने और ने पूछा है कि हाउ टू हील आवरसेल्फ इफ नो वन इज विद अस। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सी इफ यू आर फीलिंग लो, होता ये यहाँ पे मैं एक बिकॉज ये क्वेश्चन आया इसलिए एक सेंसिटिव टॉपिक कवर करता हूँ। द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन एडोलेसेंट एज ग्रुप इज रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट एंड सुसाइड। दोनों प्रिवेंटेबल है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट क्यों? अगर आप इस एज में व्हीकल्स नहीं चलाते या चलाते हैं तो हेलमेट के साथ चलाते हैं, तो दैट इज प्रिवेंटेबल। एंड सेकेंड इज सुसाइड। सी सुसाइड इज अ टेम्पररी सॉल्यूशन टू योर परमानेंट सॉल्यूशन टू योर टेम्पररी प्रॉब्लम। छोटी सी इश्यू की वजह से आप अपनी लाइफ एंड कर दे, मैंने कहा ना वो इंपल्सिव बिहेवियर होता है तो उसकी वजह से होता है। तो इस टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है try to remember the positive things which happened in your life. जब आपको कोई मेडल मिला हो, जब घर से कोई अप्रिशिएशन मिला हो, या फिर try to remember a good time spent with friends, family. Time to think about your friends and family. See, जब भी लो मूड की वजह से जो कोई भी ऐसे सुसाइड या कुछ करते हैं तो उससे उनकी लाइफ तो खत्म हो जाती है, पर बाकी की लाइफ खराब हो जाती है। बाकी के जितने भी है उनकी लाइफ ज्यादा खराब होती है। सो टू रिमेन पॉजिटिव, think of the positive things. Second, calm down your mind. Calm down करने की बहुत ज्यादा टेक्निक्स है, जैसे मेडिटेशन की आप हैबिट कर सकते हैं। एक सिंपल दूसरा प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। यू ऑल आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यू कैन जस्ट गूगल इट, पूरा अच्छे से वीडियो दिखेगा प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। यू जस्ट प्रैक्टिस दिस थिंग्स बिफोर हैंड्स, जब भी ऐसा लगे तब ये करो। थर्ड थिंग, जब भी लो फील करते हैं ना, एक पेपर पे लिख दो, कुछ भी पेपर पे लिख दिया, अंदर से निकाल दिया तो ठीक है। आज मुझे मेरे फ्रेंड पे गुस्सा आ रहा था, उसके लिए मुझे जो लिखना था उसके लिए वो लिख दिया पेपर पे, और पेपर पे लिखने के बाद पेन से उसके ऊपर दर्द 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 मार दिया, पेपर को फाड़ दिया, फेंक दिया, ये सब कर दिया ना, तो अंदर से जो खराब मूड था वो सब निकल जाएगा। तो ऐसा सब करके आप अपना पॉजिटिव माइंडसेट ला सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज के टाइम में कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई नहीं है हमारे साथ। सी इट्स जस्ट नीड अ करेज टू से टू समवन आई नीड यू। पापा मुझे बात करनी है, टीचर मुझे बात करनी है, फ्रेंड मुझे बात करनी है। हाँ, अगर आप बोलोगे तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा। सी वी हैव मिस्ड मेनी अ टाइम्स। हम आइडेंटिफाई अगर कर लेंगे अपने फ्रेंड को ऐसी कंडीशन में तो हम सामने से जाएंगे, पर अगर नहीं जा पा रहे तो इट्स इजी टू आस्क फॉर हेल्प। एंड देन जो लास्ट थिंग मैंने बोली थी प्रोफेशनल हेल्प, कि आप प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं तो वो ले सकते हैं। ओके, 1% से कि जो लो मूड में उसको कैसे कन्विंस करना है कि वो लो मूड में है और उसको कैसे हेल्प करना है। और दूसरा भी क्वेश्चन रिलेटेड है कि मूड स्विंग्स जो आते हैं तो उससे कैसे रिलेट करना है। अब ये मूड स्विंग्स जिसने भी लिखा है ना, उसके लिए मैं ये बोल दूं कि लड़कियों में कई बार ये होता है कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा आते हैं। दैट इज नॉर्मल, एक्सेप्ट करो। मैंने कहा ना, कोई भी फीलिंग है उसको एक्सेप्ट करो एंड स्पीक अप, बोलना चालू करो कि नहीं मुझे ये हो रहा है। अगर किसी को हम बोलेंगे कि मुझे गुस्सा आ रहा है तो उसको पता चल जाएगा, बॉडी लैंग्वेज से भी पता चल जाता है। बट आई एम फीलिंग एंग्री, ऐसा उसको सामने बोल देंगे तो भी पता चलेगा। सेम आई एम फीलिंग लो, ऐसा बोलना शुरू करो, तो वो करना चाहिए। फ्रेंड्स, जिसको भी ये प्रॉब्लम है उसको सिर्फ हम ये कर सकते हैं कि उसको डायरेक्टली ऐसे बोलने का मतलब नहीं कि दैट यू आर फीलिंग लो, बट यस हम उससे सिर्फ बातें सुनते रहें। एम्पैथेटिक लिसनिंग ये एक ऐसी टूल है कि जिससे अगर आप अपने फ्रेंड्स से सुनते रहेंगे, उसके मन की भड़ास निकल जाए तब तक सुनते रहेंगे ना, तो वो लो मूड से अपने आप बाहर आ सकता है। सो थैंक यू सर। हाँ सर, आपने अभी बोला that if we listen, but will they learn us? Will they ask that why should I tell or her? What पर मैं नहीं बोल रहा will हूँ, be? हमें टू टेल हिम दैट यू आर फीलिंग लो। कुछ ऐसा करो जिससे उसका मूड अच्छा हो जाए।
सी आज यू नो दैट योर फ्रेंड इज गुड इन क्रिकेट, चल हम क्रिकेट खेलने जाते हैं. You know your friend likes to go out just for walk, या उसको कुछ भी ड्रॉ करना अच्छा लगता है, चल हम ये करते हैं. उसको जो एक्टिविटी अच्छी लगती है वो एक्टिविटी उसको करने के लिए एनकरेज करो, उसको बोलने के लिए एनकरेज करो. उसको बोलना ही नहीं है कि यू आर फीलिंग लो, यू आर लुकिंग लो, ऐसा कुछ भी. हम सिर्फ ये करें कि उसका माइंडसेट सिर्फ चेंज करें. सी यू फील वन थिंग, जब कोई लो फील कर रहा है उसके पास 5 लोग जो एकदम अच्छे मूड में है, वाइब्रेशंस की बात कर रहे हैं हम, जब किसी को लो फीलिंग आ रही है उस टाइम पे जिसका भी मूड अच्छा है वो सब लोग साथ में आ जाएंगे, देन ऑटोमेटिकली वो एनर्जी ट्रांसमिट हो जाती है. आप देखो एक सिंपल चीज, मतलब यू ऑल आर एक्चुअली अ स्टूडेंट, बट यू सी आप कभी भी मंदिर में जाते हो तो उस टाइम में दिमाग कैसा शांत हो जाता है. कोई खराब विचार आता है नहीं, क्योंकि उस टाइम पे सबकी एनर्जी उस टाइप की होती है. ठीक है, तो वो जब हम सब लोग मिलके उस फ्रेंड को हेल्प करेंगे तो उसको ऑटोमेटिकली जो एनर्जी उसकी है वो जा सकती है. So thank you, students. Any other question, anyone? टीचर एक और क्वेश्चन किसी ने पूछा है प्राइवेट में, उसको मैं सिर्फ ये आंसर दूंगा. उसने ये पूछा है कि हम अपनी प्रॉब्लम बता देते हैं बट वो फ्रेंड हमारा उसका मजाक उड़ाना चालू कर देता है या हमें टीज करना चालू कर देता है, तो क्या? सो द लेसन इज शेयर योर प्रॉब्लम विथ योर फ्रेंड्स, रियल फ्रेंड्स. ऐसे फ्रेंड्स नहीं जो आपको टीज करे उसके ऊपर. सी अभी आपको पता चल ही जाएगा कि आपके रिलायबल या ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड्स कौन है. टाइम शॉर्ट है पर फिर भी एक छोटी सी स्टोरी अगेन मैं बोलूंगा. एक बच्चा था, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, पर उसके पीछे उसके फ्रेंड्स ने उसको टीज करने के लिए लिख दिया था यू आर स्टूपिड, ऐसा एक लेबल लगा दिया था. वो लगा दिया था, सारे क्लास में 50 बच्चे थे पर किसी ने उसको बोला नहीं, सब हंस रहे थे उसके ऊपर. फिर टीचर ने उसको एक मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बोला और उसने बोर्ड पे जाके लिख दिया, सॉल्व कर दिया और टीचर ने देखा. तब टीचर ने सबको बोला, उस स्टूडेंट को पहले बोला दैट हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तो उसने 1-2 नाम गिनाए कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है. एंड फिर टीचर ने उस दोनों स्टूडेंट को खड़े किया कि बेटा इफ यू आर अ ट्रू फ्रेंड यू शुड हैव सेड टू हिम कि पीछे किसी ने स्टिकर लगाया हुआ है. तुम्हें बाकी सब टीज कर रहे थे तब अपने फ्रेंड के सपोर्ट में खड़ा रहना जरूरी था. सो ट्राई टू आइडेंटिफाई दोज टाइप ऑफ फ्रेंड्स कि जो अच्छा या बुरा कुछ भी हो उस टाइम में आपके साथ खड़े रहते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, एंड देन शेयर द थिंग्स विद देम. ये फ्रेंड कोई भी हो सकता है, वो एल्डर्स मतलब पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, कोई भी, बट ट्राई टू हैव वन फ्रेंड हु विल नॉट टीज यू फॉर योर फेलियर्स और एनी सेटबैक्स. थैंक यू. Any more questions? Anyone? So have you received any question? Okay, fine enough. I think all questions are being answered now. Fine. Thank you so much, sir, for such brilliant, learned and scholarly session. Thanks for enhancing our knowledge and clearing our basic concepts on how much emotional health is really important. And we almost ignore the same all the time. I personally learned many things as an educator and as a parent too. Thank you so much, sir, for sparing your precious time and sharing your in-depth knowledge with us. I once again thank you on behalf of our principal, Dr. Sanjay Mehta, sir, our vice principal, Mrs. Swapna Jairam ma'am, and my entire CIS team, including our grade 9 scholars too. Thank you so much, sir, for being with us. Thank you. Thank you. Okay, everyone, I'm concluding the session over here. Take care, everyone. Stay healthy, stay safe. Bye-bye.